Hello students, we are doing issue of shares. In this video, we will discuss other theoretical points. Hello children, in this video, we will cover the topic how company issue shares to the public. Shares may be issued in any of the following way. For cash, for consideration other than cash. For cash means when shares are issued by a company for cash means company receive cash. For consideration other than cash means for that issue company didn't receive any cash. तो कैश फॉर कैश जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो ये हमारे दो तरीके हैं, टू वेज हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. Private placement of shares. Section 42 of Companies Act 2013 means company issue shares on private placement basis. Sometimes the promoters of a public company are confident of raising capital through private sources and contacts. In such a case, the company doesn't invite the public to subscribe for its share, but make private placement of shares to promoters, their friends, relatives, shareholder of group companies, mutual fund, NRIs, financial institutions just like LIC, UTI, ICICI. So in this way, when the shares are not offered to the public, but shares are offered to a private group of peoples, in this situation, there is no need to issue prospectus. Instead of issuing prospectus, the promoters are required to draft or publish a statement in lieu of prospectus and submit its copy with the registrar for before going to the further proceedings. In case of private placement of shares, the allottees will not sell their shares before issuing 3 years, means the period of lock-in period is 3 years, means before 3 years the person can't sell their shares to the other person. Number 2, sweat equity shares. Sweat equity shares, section 54 of the Companies Act 2013. A company may issue sweat equity shares as per section 54. Sweat equity means equity shares issued by the company to its employee or directors at a discount or for consideration other than cash for providing know-how or अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. मीन्स जब कंपनी अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करती है डिस्काउंट पे, या कंपनी ने कोई उनसे टेक्नोलॉजी ली है तो उसके बदले में कंपनी उनको शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करती है, तो इन शेयर्स का भी लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है. मीन्स 3 इयर्स से पहले कंपनी शेयर होल्डर इन शेयर्स को सेल नहीं कर सकते. थर्ड है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP. इसका सेक्शन है सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. मीन्स by passing a special resolution in the general meeting of the company can go for ESOP. ESOP means employee stock option, means right or an obligation given to the full-time directors, officers and employee to purchase at a future date the securities offered by the company at predetermined prices. मीन्स कंपनी ने फ्यूचर में कोई शेयर्स इशू करने हैं, उसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देती है कि तुम अगर परचेज करना चाहते हो तो हम तुम्हें अपने शेयर मार्केट वैल्यू से कम पर इशू कर देंगे. ये वॉलंटरी स्कीम है, एम्प्लॉयज़ की मर्जी है वो इसे बाय करें या ना करें. तो इस स्कीम के अंडर जब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो यहाँ पे मिनिमम लॉक्ड पीरियड होता है 1 ईयर. मीन्स ESOP कंडीशन के अंदर, ESOP स्कीम के अंडर बाय किए गए शेयर्स को 1 ईयर से पहले डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता. तो ये हमारे 3 मेथड थे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के.
प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, स्वेट इक्विटी मीन्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं एट अ डिस्काउंट। अब हम सेकंड मेथड करेंगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में मीन्स पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे? पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। नंबर 1, टू इशू प्रोस्पेक्टस। तो जब पब्लिक को सब्सक्राइब किए जाते हैं, पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, तो कंपनी इन स्टेप्स को फॉलो करती है। सबसे पहले नंबर पे कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर। प्रोस्पेक्टस एक टाइप से इन्विटेशन है, कंपनी का सर्कुलर है, जिसकी हेल्प से कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, इनवाइट करती है अपने शेयर्स परचेज करने के लिए। प्रोस्पेक्टस ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और साउंडनेस के बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म करता है। तो इसके अंदर क्या क्या, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, क्या रिस्क है, और सेबी से इन्होंने कंसेंट ली है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी से परमिशन मिलने के बाद ही कंपनी आगे की अपनी एक्टिविटीज कर सकती है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस के अंदर क्लियर मेंशन होता है कि कंपनी की क्या एथराइज्ड और इशूड कैपिटल है, कितने शेयर्स और कितने टर्म्स में वो पब्लिक को ऑफर करने जा रही है, शेयर्स की इशू करने की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या है। सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर दी जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है टू रिसीव एप्लीकेशन। तो जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, प्रोस्पेक्टस रीड करने के बाद पब्लिक क्या करती है? कंपनी के पास शेयर्स के लिए अप्लाई करती है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस, द पब्लिक अप्लाई फॉर शेयर्स इन द कंपनी ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। Each application must accompany the application money which is mentioned in the prospectus। हर एप्लीकेशन के साथ ना एप्लीकेशन मनी भी भेजनी होती है, जो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होती है, और हमेशा ये इश्यू वैल्यू के 25% से लेस नहीं हो सकती। इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर। The amount of share application must be deposited by the public in a scheduled bank। जो एप्लीकेंट होते हैं, जो अप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं? एप्लीकेशन के साथ, अपनी एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी को बैंक में, जो कंपनी का प्रिस्क्राइब्ड बैंक होता है, जो कंपनी ने बताया होता है, और वो बैंक कंपनी के प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन होता है, वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं। आगे थर्ड पॉइंट है टू मेक अलॉटमेंट। आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। देखो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है कि कंपनी कब शेयर्स इशू करेगी और कब इसकी क्लोजिंग डेट है। तो जब इसकी क्लोजिंग डेट होती है, यानी कि जब लास्ट डेट इसकी ओवर हो जाती है, तो बैंक क्या करते हैं? कंपनी की सारी एप्लीकेशंस और उसकी मनी कंपनी के डायरेक्टर्स के पास भेज देते हैं। तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कांट प्रोसीड टू अलॉट शेयर्स विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स, ये इसका सेक्शन है हमारा सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 मीन्स that a company can't allot any securities of the company to public unless the amount stated in the prospectus as a minimum subscription has been received। कंपनी अलॉटमेंट तब तक नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं आ जाता। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनीज एक्ट 2013 में तो नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी ये क्या अमाउंट होता है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स जो डायरेक्टर्स के ओपिनियन में जो ठीक होता है, यानी कि विच in the opinion of director is the minimum to be raised by the issue of shares so as to provide for the following requirement। कि जो डायरेक्टर्स के ओपिनियन में लगता है कि उन्हें, हमें अपनी कंपनी को चलाने के लिए कम से कम इतना पैसा ज़रूर चाहिए। तो ये डायरेक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर 1, वो ये देखते हैं कि हमें
एसेट्स को परचेज करने के लिए कितनी पेमेंट करनी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर्स को इशू करने पे हमने कितनी ब्रोकरेज देनी है। नंबर 3, अगर कंपनी ने कहीं से रीपेमेंट करनी है, जो बोरोड मनी है, जो उधार लिया था उसको रीपे करना है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, कंपनी की वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, और बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, कंडक्ट करने के लिए और कितने एक्सपेंडिचर की नीड है। तो ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो बताते हैं कि कंपनी को कम से कम इतने अमाउंट की ज़रूरत है। कंपनी एक्ट 2013 कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट फिक्स नहीं करते हैं, लेकिन सेबी ने गाइडलाइंस दी हैं कि कंपनी ने जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं उसका 90% के लिए एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। अगर कंपनी को 90% के लिए एप्लीकेशन नहीं आते हैं, इफ कंपनी फेल्स टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, then it is compulsion for a company to return the whole amount within 15 days. If there is a delay in refund of such amount by more than 15 days, the company shall be liable to repay it with interest at the rate of 15% per annum. अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं करती है तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती और सारी एप्लीकेशन मनी कंपनी को नेक्स्ट 15 डेज में, अगले 15 दिनों में वापस करनी पड़ती है। अगर कंपनी इसमें डिले करती है तो जितना डिले होगा उसके ऊपर 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ईच एलओटी को, उसके बाद जब शेयर्स अलॉट होते हैं तो हर एलओटी को कंपनी एक सर्टिफिकेट भेजती है, उसके ऊपर मेंशन होते हैं कि कंपनी ने उन्हें कितने शेयर्स इशू किए हैं। लेटर ऑफ अलॉटमेंट, उसके साथ लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ अलॉटमेंट मनी की भी डिमांड की जाती है। और जिन शेयर होल्डर्स को, जिन एलओटीज को कंपनी ने शेयर्स इशू नहीं किए, उनको कंपनी एक लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड करती है अलोंग विद द चेक फॉर द रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, कि जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बट कंपनी उनको शेयर्स अलॉट नहीं कर रही है, तो कंपनी क्या करती है, उनकी एप्लीकेशन मनी उन्हें वापस करती है विद लेटर ऑफ रिग्रेट। और इस प्रकार हमारा ये अलॉटमेंट का स्टेप पूरा होता है। अब नंबर 4 है टू मेक कॉल्स। द अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट्स आर नॉट कॉल्स। वो कॉल्स नहीं है, उनकी अलग है, एप्लीकेशन अमाउंट अलग है, अलॉटमेंट का अमाउंट अलग है। उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट बचा है उसको कंपनी इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है। तो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं फर्दर, यानी कि जो कंपनी ने आगे डिमांड करनी है, आगे इंस्टॉलमेंट डिमांड करनी है, उनको कॉल्स कहते हैं। ये कॉल्स कंपनी डिसाइड कर सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एज दे विश। बट कंडीशन क्या है कि कंपनी जो कॉल्स की डिमांड करती है तो उसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल पे कम इशू प्राइस का 25% से लेस अमाउंट नहीं होना चाहिए और सारी मनी इशू करने के 12 मंथ के अंदर अंदर कंपनी को रिसीव हो जानी चाहिए और 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 मंथ का गैप होना ज़रूरी है। और जब कंपनी कॉल की डिमांड करती है तो कम से कम 14 डेज का नोटिस देना ज़रूरी है। और कॉल्स उन्हीं शेयर्स पे की जाती है जिस उसी क्लास के, उसी कैटेगरी के शेयर्स कंपनी पहले इशू कर चुकी है। अब ये कोई कंडीशन नहीं है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगे। कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। कई बार कंपनी होल अमाउंट लमसम कॉल कर लेती है, यानी कि जो शेयर की फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है, जैसे 10 रुपीज़ पर शेयर, तो कंपनी की विलिंगनेस है ये अमाउंट वो इकट्ठा भी डिमांड कर सकती है या इंस्टॉलमेंट में। अगर होलसेल अमाउंट डिमांड करती है तो हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ज्वाइंट अकाउंट ओपन होता है, जो आगे हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो हमने कहा था कि डायरेक्टर्स को मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, preliminary expenses means expenses incurred on the formation of a company are termed as preliminary expenses। प्रारंभिक व्यय
जो कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट पे, कंपनी की फॉर्मेशन पे खर्च किए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? नंबर 1, expenses incurred on the preparation and printing of various document. Number 2, stamp duty, registration fees on these documents. Number 3, ड्यूटी पेबल ऑन अथराइज्ड कैपिटल, जो अथराइज्ड कैपिटल है उसके ऊपर कंपनी को रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, तो जो ड्यूटी पे की है वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट है। नंबर 4, कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स। नंबर 5, अगर कंपनी ने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया है, चलता हुआ बिजनेस परचेज किया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो उस बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन करवाती है। तो जिस अकाउंटेंट से या जिस वैल्यूअर से उन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन करवाई है, उसके लिए कंपनी ने जो फीस दी है वो भी किसका पार्ट है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अब इसको राइट ऑफ करने का क्या रूल है? ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंडर आता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को जिस साल ये इनकर्ड होते हैं, जिस साल ये खर्च किए जाते हैं, उसी साल इनको राइट ऑफ करना ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या ऑप्शन है? अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट पड़ा है तो फर्स्टली वहाँ से राइट ऑफ होंगे। उसके बाद अगर ये नहीं है, इसकी एब्सेंस में कंपनी क्या करेगी? अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से इनको राइट ऑफ करेगी।